Very, very warm and exciting good evening to all my dear friends. Once again, I am with you with a very important concept of dealing with the shapes of different orbitals. Most often, we study that S is spherical, P is dumbbell, D is in the form of the double dumbbells. But have you ever thought how exactly these shapes have come into existence? Overall, S spherical, P dumbbell, all these shapes or D in the form of the double dumbbell, these all shapes have emerged out after the solution of the angular wave function of the Schrodinger equations. Schrodinger equation essentially when it is solved, it's got a very complicated and comprehensive mathematical computation techniques. We are only discussing the solutions of the Schrodinger equations, which is broken into essentially two parts. One is the radial wave function, and the second part is the angular wave functions. Today, my main focus is on the angular part of the wave function of the Schrodinger equations for an orbitals in the hydrogen atom or the hydrogen-like species. Exactly, radial wave function gives us an idea about the radial distance where the probability of finding electron is maximum. As far as the angular wave function is concerned, this gives us an idea about the angle dependence of the electron probability around the nucleus. In general, the very simplest and the simplified form of the Schrodinger wave equation can be depicted as I have highlighted on the board. Let us get back onto the board and try to understand, try to explore exactly what it actually signifies. Let us say we in general write the wave function psi r theta phi. Psi is a function of r, theta and phi. It is represented as r, yani radial, yani function, r as a function of r, and y as a function of theta and phi. Here I have mentioned RNL. RNL means that the radial part of the wave function depends on the two quantum numbers. One is the principal quantum number and second one is the azimuthal quantum number. As far as angular part of the wave function is concerned, it depends on two quantum numbers. One is a L, that is a azimuthal quantum number. It is written like this. या तो इसको ऐसा लिख लो या इसको ml यानी यहीं पे इसके साथ में जाके लिख लो. That doesn't make any difference. This depends on magnetic quantum number as well as azimuthal quantum number, and it is a function of theta and phi. Theta is the co-latitude angle and phi, as I have already discussed, it is the azimuthal angles. This part is called the radial wave function. This part is called your angular wave function. Angular wave function is also called as spherical harmonic functions. Angular function is also called as spherical harmonic function. Now I have given you some of the details. यहाँ पे ध्यान दें. Let me come back to हिंदी. थोड़ा सा जरा अंडरस्टैंड करते हैं कि एग्जैक्टली ये कहाँ से ये सारे ये डाटा जो कि आए हैं. ये डाटाज, all these datas are the outcome of the mathematical solution of the Schrodinger equation in the polar coordinate system. एग्जैक्टली अगर n का वैल्यू सपोज करो कि अगर 1 है, तो n की वैल्यू 1 अगर होती है तो उस कंडीशन में L एजिमुथल क्वांटम नंबर विल बी 0. इफ L इज इक्वल टू 0 तो m भी क्या हो जाएगा, दैट विल आल्सो बी 0. यहाँ पे थीटा मैंने लिखा 1, यहाँ भी थीटा और यहाँ फाई लिख दिया, दैट इज योर 1. 1 मीनिंग यानी कांस्टेंट. तो
एग्जैक्टली क्या होता है, आज केवल मैं बात कर रहा हूं एंगुलर वेव फंक्शन वाले पार्ट की। अगर ये सिचुएशन है तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग टू, दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग टू the 1s atomic orbitals. This one is representing to, this one is representing to 1s atomic orbitals. It clearly implies that this is constant, this is also constant. It means s orbiter doesn't have any dependence on theta function and the phi functions. If we vary the theta, if we vary the phi angle, everywhere angular wave function will remain constant. It means it doesn't have theta and the phi यानी dependence, और इसीलिए हम जो है कि s ऑर्बिटल को स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल भी बोलते हैं। अभी मैं उसका यानी पोलर डायग्राम्स के थ्रू भी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। सेम तरीके से आगे चलते हैं कि 2, if the value of n is equal to 2 तो l can have two values 0 and 1। n is equal to 2 है तो l is equal to 0 to n minus 1 होता है। तो अगर l की वैल्यू 0 है तो n की वैल्यू 0, जब भी ये 0 0 होंगे ये हमेशा कांस्टेंट लेके आ जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से अगर ये 2 है और l का वैल्यू अगर 1 है, अगर l का वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू कैन बी 0 प्लस माइनस 1। एक जगह मैंने लिखा है 0, एक जगह लिखा प्लस 1, एक जगह लिखा है यानी माइनस 1। इस 2 के रिस्पेक्ट में इसको एक ही बार जो है कि लिख लेता हूँ यहाँ पे, यानी एक बार जो है कि मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया कि 2 के करस्पॉन्डिंग अगर वैल्यू 0 है तो ये तो आ गया 0 1 1। अगर l की वैल्यू होती है 1 तो l की वैल्यू अगर 1 होती है तो उस कंडीशन में m की वैल्यू क्या होंगी 0 प्लस 1 माइनस 1। ये 0 लिखा प्लस 1 एंड माइनस 1, इस तरीके से मैंने ये चीज़ को लेके लिख दिया। ठीक है, ये आ गया। इसका मतलब क्या होता है, p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंटेशन लेता है। l अगर 1 आ गया तो इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट हियर द p ऑर्बिटल्स। दिस इज द p ऑर्बिटल्स। और p ऑर्बिटल में भी 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। ये ऊपर वाला तो यहाँ पे जो आ गया 0 0 के लिए, ये किसको रिप्रेजेंटेशन कर रहा होगा 2s ऑर्बिटल को। अगर m का वैल्यू 0 होता है तो उस कंडीशन में थीटा यानी cos थीटा पे डिपेंड करता है, फाई पे अगेन देयर इज नो डिपेंडेंस। अगर l का वैल्यू जो है कि 1 है, m का वैल्यू प्लस 1 है, तो इसमें जो थीटा डिपेंडेंस आएगी दैट विल बी एज अ फंक्शन ऑफ द साइन, एज अ फंक्शन ऑफ साइन यानी साइन थीटा। और जो फाई होता है ये होता है यानी एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर आयोटा फाई। सिमिलरली अगर ये 1 है, m का वैल्यू इफ इट इज 1, इफ इट इज जस्ट द माइनस 1, तो अगेन जो डिपेंडेंस आ गया, डिपेंडेंस अगेन इसकी साइन थीटा पे जो की जाती है। और जो फाई फंक्शन है दैट इज डिपेंडेंट ऑन एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर माइनस आयोटा फाई। ठीक है, इन डेटास के हिसाब से, इन थीटा एंड फाई के हिसाब से हम लोग प्लॉट करते हैं इनके पोलर डायग्राम। इसी से हमें मालूम चलेगा कि ऐसे स्फेरिकल क्यों हो रहा है, पी यानी डम्बल शेप में क्यों जा रहा है। सिमिलरली अगर n का वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू हो सकते हैं 0 1 2। l की वैल्यू इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2। मैंने यहाँ पे 2 बार 3 बार क्यों लिखा है, क्योंकि आगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। अगर ये 0 है तो m का वैल्यू यानी 0, जब भी ये 0 आ गया तो ये तो हमेशा कांस्टेंट जो है रहेगा। अगर जो है कि यहाँ पे l का वैल्यू 1 है, यहाँ पे अगर 0 है तो जैसा यहाँ है cos थीटा पे डिपेंडेंस बिल्कुल उसी तरीके से। अगर l का वैल्यू 1 है तो m का वैल्यू प्लस माइनस 1 जो कि लिख दिया, प्लस माइनस 1 यानी वही साइन थीटा यानी प्लस माइनस 1। इज इट क्लियर? और जो चीज़ें यहाँ cos थीटा के साथ आई है एग्जैक्टली यहाँ ये हो जाएगा 1, यहाँ पर अगेन सेम चीज़ आ गया,
यानी एक्सपोनेंशियल आयोटा फाई, और यहाँ पे यानी सीधा यहीं पे लिख देता हूँ प्लस माइनस आयोटा फाई। जो ऊपर है वही चीज़ें मैंने यहाँ पे भी इंडिकेट जो कि ले लिया। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे, द वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब n का वैल्यू 3 होता है, ये तो 3s के लिए आ गया भाई, ये इंफॉर्मेशन आपके पास जो है कि यानी 3p के लिए आ गया, जिसमें 3px 3py 3pz आ गया, ये तीन वैल्यू जो है कि आ चुकी हैं। अगर ये वैल्यू n का वैल्यू जो है कि अगर 3 होता है तो उसमें l की जो वैल्यूज आएंगी, l की सॉरी अगर l की वैल्यू 2 है तो उस कंडीशन में या इसकी वैल्यू 0 हो सकते हैं, प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 2। अगर ये वैल्यू 0 होती है तो थीटा की डिपेंडेंस के लिए आपको याद रखना 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर प्लस माइनस 1 है तो यहाँ थीटा डिपेंडेंट साइन 2 जो कि थीटा। इसी तरीके से प्लस माइनस 2 है तो ये साइन स्क्वायर थीटा जो कि फंक्शन पे डिपेंड कर जाता है। बाकी यहाँ पर ये कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे आ जाएगा e रेज टू द पावर प्लस माइनस आयोटा फाइव, और यहाँ जाएगा e रेज टू द पावर प्लस माइनस आयोटा 2 फाइव। ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन है। ये टेबल पे आपको जो है कि डाटा अगर याद है, इफ़ यू रिमेंबर दिस डाटाज, इन्हीं के बिहाफ पर हम लोग जो है कि ऑर्बिटल के शेप्स जो है कि डिसाइड करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ कि एस स्फेरिकल कैसे आया, पी यानी डम्बल शेप में क्यों आया, एग्जैक्टली हम जेड एक्सिस के लॉन्ग जो पी जेड है उसके लिए एम का वैल्यू 0 क्यों लेते हैं। ये बहुत अक्सर स्टूडेंट के माइंड में जो कि क्वेश्चन होता है कि वाई एग्जैक्टली पी जेड और वाइटल इज असाइंड द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m इज इक्वल टू 0, वाई नॉट प्लस माइनस 1। इज इट क्लियर? तो जरा देखते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा इतने पार्ट को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इतने पार्ट को हटा रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। आप ध्यान से देखना कि एग्जैक्टली है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि इफ आई एम टेकिंग n वैल्यू इक्वल टू, सपोज यहाँ पे 1 है, n अगर 1 है तो l का वैल्यू यानी 0 हो जाएगा और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विल आल्सो बिकम इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अगर आपको इसके टर्म्स से एंगुलर यानी फंक्शन के टर्म्स में जो कि लिखना है तो ध्यान दें, इसको जो कि लिखने का जो कि मेथड एग्जैक्टली होगा क्या। ये लिख दिया मैंने y, यहाँ पे लिखा है ml, तो m का वैल्यू यानी क्या है 0, ये वैल्यू भी क्या है दैट इज 0, या तो 0 0 यहीं पे लिख दो या ऐसे तरीके से इट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई, फंक्शन ऑफ द थीटा एंड फाई का यानी फंक्शन हो गए। ठीक है, और ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड हो जाएगा, अभी मैंने बोला था कि न तो ये यानी थीटा पे डिपेंड करता है न ये फाई पे डिपेंड करता है। तो ये एक कांस्टेंट की जगह प्रोपोर्शनल जैकी हो गया। ठीक है, अब इस वाले केस में जो है कि अगर मुझे जो है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालनी होती है तो इसका जो कि मॉड स्क्वायर जो कि ले लिया जाता है, इसका यानी थीटा एंड फाई, इसका अगर मॉडुलस का स्क्वायर जो कि लेंगे तो अगेन ये कांस्टेंट क्वांटिटी ही आएगा। अब देखते हैं अगर इसका मैं प्लॉट जो है कि आपको एक्सप्लेन करूं तो एग्जैक्टली पोलर प्लॉट एक्चुअली 3 डायमेंशन में होता है। Just to make the things understandable, I have represented your x-axis, y-axis and the z-axis. Here it is the nucleus of the atoms. अब आपसे कि इस फंक्शन को देखें, इस एंगुलर फंक्शन से साफ मालूम चल रहा है कि आप न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे ये फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है। यानी अगर मैं थीटा या फाई को चेंज करता हूँ तो थीटा एंड फाई पे इसका कोई डिपेंडेंस नहीं है, और अगर कोई फंक्शन जो है कि को लैटिट्यूड एंगल या एजिमुथल एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो सेंटर पॉइंट यानी सेंटर के रिस्पेक्ट में स्फेरिकली जो कि हार्मोनिक हो जाएगा। ये स्फेरिकली
सिमेट्रिकल हो जाएगा। और अगर ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल हो गया तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल में ये कैसे आ जाएगा, इस तरीके से स्फेरिकल यानी शेप में चला जाएगा किसी भी डायरेक्शन में। जैसे यहाँ से यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है दैट इज 0, यहाँ से यहाँ आप आए तो थीटा यानी चेंज हुआ, थीटा चेंज होने से यहाँ पर भी आपको एक डॉट यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिला। कहीं पर भी चले जाओ आप जो है कि क्योंकि थीटा पे तो डिपेंडेंस है ही नहीं, इसलिए इसके सेंट्रल पॉइंट के चारों तरफ आपको जो है कि इलेक्ट्रॉन डॉट का जो कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है कि मिलेगा। ये इस एक्सप्रेशन से भी जस्टिफाइड हो रहा है, दैट एंगुलर प्रोबेबिलिटी। एंगुलर प्रोबेबिलिटी मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन by changing the co-latitude angle or the azimuthal angle is always constant, and this will remain constant because the symmetry is going to be here the spherical constant। से ही ये इम्प्लाई होता है कि ये एक स्फेरिकल सिमेट्री होना चाहिए, और यही रीजन होता है कि एस ऑर्बिटल एग्जैक्टली हमेशा स्फेरिकली यानी सिमेट्रिकल हो जाता है। एक केस आपको मैं पी ऑर्बिटल का जो है कि सिंपल, ये तो बहुत आसान सा था केस। सपोज करो कि इफ द वैल्यू ऑफ एन, यानी कौन सा ऑर्बिटल हो गया, ये 1s ऑर्बिटल हो गया। यहाँ मैं रेडियल पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, रेडियल पार्ट इसके थ्रू जो है कि आता है, जिसके लिए आप जो है कि साई अगेंस्ट आर, साई स्क्वायर अगेंस्ट आर इस तरीके के प्लॉट ड्रॉ करते हैं, या इस प्लॉट को बोला जाता है पोलर प्लॉट। If for example if n is taken equal to that is 2, L I am taking here equal to 1, क्योंकि n अगर 2 है तो L की वैल्यू 0 to 1 ये की वेरी करेंगे। अब मैंने 2p ऑर्बिटल ले लिया और यहाँ m की वैल्यू ये ले रहा हूँ 0। ये जो है कि 2pz ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। अब यही क्वेश्चन उठता है कि pz के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 क्यों होने जा रहा है। तो अगर इसकी आप जो है कि बात करें तो इसके लिए अगेन इसी तरीके से ml, m का वैल्यू यानी क्या आ गया यहाँ पे 0, l का वैल्यू आ गया 1। डायरेक्टली मैं सीधा इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है पे बात करूंगा, तो मैंने सीधा इस तरीके से जो है कि लिख दिया, इसका स्क्वायर लिख दिया, और इसकी